বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গঠন হোৱা ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুচিভ এলায়েন্সৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল? কোনগৰাকী নেতাই প্ৰথমতে লৈছিল উদ্যোগ? ৰাহুল গান্ধী, নীতিশ কুমাৰ, তেজস্বী যাদৱ, মমতা বেনাৰ্জী নে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল? নহয়, ডেমক্ৰেচি লাইফে লৈ আহিছে ইণ্ডিয়াৰ জন্ম ক্ষণৰ আচল কথাবোৰ। চলিত বৰ্ষৰ 15 পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পাটনাৰ গান্ধী ময়দানৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মেমৰিয়েল হলত অনুষ্ঠিত হৈছিল CPI-MLৰ 11 সংখ্যক মহা অধিৱেশন। আৰু অধিৱেশনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো আছিল অন্যতম। CPI-MLৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰিকল্পনাৰে বিজেপিক শাসনৰ পৰা উফৰাবলৈ দেশৰ বিৰোধী শক্তিক একগোট কৰাৰ বিষয়ত এক আলোচনাৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিল 18 ফেব্ৰুৱাৰীত। CPI-MLৰ আমন্ত্ৰণত উক্ত অধিৱেশনত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ, কংগ্ৰেছ নেতা সলমান খুৰছিদ আদি বিশিষ্ট নেতাসকল। আৰু CPI-MLৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী অধিৱেশনৰ উক্ত দিনতে অংকুৰণ হৈছিল বিৰোধী মৰ্চাৰ অৰ্থাৎ আজৰ ইণ্ডিয়াৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যক ভ্ৰমণ কৰি মমতা বেনাৰ্জী, শাৰদ পাৱাৰ, ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আদি বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰি বিৰোধী একতা গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে তৎপৰ হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চলিত বৰ্ষৰ 23 জুনত ভালে সংখ্যক বিৰোধী দলৰ অংশগ্ৰহণৰে পাটনাত বিৰোধী মৰ্চা গঠনৰ আলোচনাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, য'ত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, JDUৰ নীতিশ কুমাৰ, RJDৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱ, তেজস্বী যাদৱ, আপৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মমতা বেনাৰ্জী, NCPৰ শাৰদ পাৱাৰ, DMKৰ ষ্টেলিন, CPI-MLৰ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, CPI-Mৰ ডি ৰাজা, নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ উমৰ আব্দুল্লা, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অখিলেশ যাদৱ, JMMৰ হেমন্ত সোৰেন, শিৱসেনাৰ আদিত্য ঠাকৰেকে ধৰি কেইবাটাও দলৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত আছিল। ইয়াৰ পাছত বাংগালুৰুত 26 বিৰোধী দলৰ বৈঠকত বিৰোধী মৰ্চাৰ নাম চূড়ান্ত হৈছিল ইণ্ডিয়া হিচাপে। এই বিষয়ে ডেমক্ৰেচি লাইভৰ সন্মুখত সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে বিহাৰ বিধানসভাৰ CPI-MLৰ বিধায়ক সুদামা প্ৰসাদে। সুদামা প্ৰসাদে কি ক'লে ইণ্ডিয়াৰ জন্মক্ষণৰ প্ৰকৃত কথাবোৰ আগবঢ়াইছে তেওঁৰ বক্তব্য। तो इंडिया फॉर्म हुआ और मैं समझता हूँ कि इसकी पहल जो है CPI-ML लिबरेशन का जो 11वां महाधिवेशन हुआ पटना में, उसी में इसकी नींव पड़ी। पार्टी का भाकपा माले CPI-ML लिबरेशन का 11वां महाधिवेशन 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में हुआ इसी साल। 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने लाखों की रैली की, भाजपा भगाओ देश बचाओ। और 16 से महाधिवेशन शुरू हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने, हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने 18 फरवरी को महाधिवेशन के क्रम में ही एक सत्र स्पेशल विपक्षी एकता पर वार्ता के लिए रखा और सबको निमंत्रण भेजा गया, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब आए थे, CPI के वरिष्ठ नेता डी राजा आए थे, CPM के नेता आए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का शुभकामना संदेश मिला पत्रों के माध्यम से, और हमने वो मंच तैयार किया विपक्षी एकता के लिए। खुले मन से सब लोगों ने आपस में बात किया। कई माने ऐसे अवसर भी आए हंसने हंसाने वाले, और कहा जाए कि उस मंच का प्रभाव ये हुआ कि महाधिवेशन की समाप्ति के बाद जो बिहार के CM और डिप्टी CM हैं, वो पूरे राज्यों के दौरे पर निकले, खास करके जहां विपक्षी दलों की सरकारें चल रही थी। उन लोगों ने कई टर्म में ये प्रयास किया विपक्षी एकता का। और 23 जून 2023 को पटना में ये पहली मीटिंग, कहा जाए कि दूसरी मीटिंग, अगर महाधिवेशन की बात करें तो हम तो समझते हैं कि वही पहली मीटिंग थी। भाकपा माले CPI-ML ने पहल लिया। इसके बाद मीटिंग 23 जून को पटना में हुई, जिसमें 15 दल के नेता जुटे। फिर इसके बाद कर्नाटक में जो मीटिंग हुई उसमें 26 दलों के विपक्षी गैर भाजपाई दल जुटे, और जिसमें गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। और फिर जो है जो पिछली मीटिंग जो हुई आपको महाराष्ट्र में
अगस्त के लास्ट महीने में उसमें कई चीज़ों पर वार्ता हुई और उसमें 28 दलों के नेता जुटे। तो जैसे जैसे ये इंडिया गठबंधन का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की बेचैनी बढ़ रही है और उसी बेचैनी में इन लोगों ने लोकसभा का स्पेशल सत्र बुलाया है 5 दिनों का और एक नया सिगुफा इन्होंने छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये तो कहा जाए कि ये सीधा सीधी भारत के लोकतंत्र को, संविधान को हड़पने का, माने कहे कि उसके अपहरण करने का ये प्रयास संघ भाजपा चला रहे हैं। ये कैसे संभव है? अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ और आपको जनादेश नहीं मिला और फिर आप चाहते हैं कि माने जनादेश हम हरण कर लें। ये बिल्कुल ही लोकतंत्र विरोधी ये कार्रवाई है, हताशा की कार्रवाई है। भाजपा को 2014 में मात्र 31% वोट आया था, उसके खिलाफ में 69% वोट पड़ा था, 69%। लेकिन वो वोट जो है बिखरे हुए थे, सभी लोग अलग अलग लड़ रहे थे। 2000 मैंने कहा जाए कि 19 में जो चुनाव हुआ उसमें 37% वोट इनको मिला और 63% वोट खिलाफ में था, बिखरा हुआ था, सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन ये पहला अवसर दिया भाकपा माले के महाधिवेशन ने हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में, और ये विपक्षी एकता की पहल हुई और ये पहल आज इंडिया के रूप में जो है सामने दिखाई पड़ रही है। हमने जरूर महाधिवेशन में बीज रोपा था जो आज पेड़ के रूप में, इंडिया रूपी पेड़ के रूप में वो कहा जाए कि दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। तो ये पहल जो है हम लोगों ने लिया है, हम लोगों को इस बात का गौरव है, गर्व है कि हमने इस पहल की सूत्रपात किया हमारे महासचिव ने पटना में महाधिवेशन से, और ये बढ़ रहा है। तो इसकी बढ़ती ताकत से भाजपा संघ जो है घबरा गए हैं कि अब सब लोग एकजुट हो गए हमारे खिलाफ में। एक बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ में विपक्ष का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, नेक टू नेक फाइट होगा और इनकी लुटिया डूब जाएगी। इनको बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया जाएगा, जो इस देश को अपनी निजी जागीर समझ रहे हैं। यहाँ के सार्वजनिक संपत्तियों को ये कहा जाए कि अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। जो भी विपक्ष इसके खिलाफ पे बोलता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दे रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन हो गई है, माने दूसरे दल का भ्रष्ट नेता आएगा और यहाँ से जो है जा कर के एकदम वो गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। तो ये जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़े हुए थे कि हम पूरे भारत को विजय करेंगे, अश्वमेध का घोड़ा, उसको जो है हम लोगों ने रोका बिहार में रोका। ये सब जगह जो है माने मध्य प्रदेश में गिरा दिया चुनी हुई सरकार को, महाराष्ट्र में गिरा दिया, कर्नाटक में गिरा दिया, और इनको पहली बार झटका लगा बिहार में 9 अगस्त 2022 को एनडीए की सरकार को गिरा करके महागठबंधन की सरकार बनाया गया। और आज बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और यहाँ के इस परिघटना ने पूरे देश के विपक्षी दलों में आशा का एक संचार किया और सब लोग उत्साहित होकर एकता की राह पर चल पड़े। ইণ্ডিয়াৰ আৰৰ আৰম্ভণিৰ মূল নেতা CPIMLৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সন্দৰ্ভত বিতং প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱা হ'ব। মৰম কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট, ডেমক্ৰেচি লাইভ।